5 ways to stay ahead of your competition using digital marketing in 2023. And in this video, I'm also going to cover one bonus strategy which I call as CC strategy. So stay till the end of this video and don't skip any particular thing. Timestamps are right in the description, and you can also speed up this or maybe slow down this video if you wish to. Alright, Baki. Alright, so let's start with how to stay ahead of your competition in 2023. But yeah, before that, let me just remind you that I'm coming up with a new book, my first ever book, 24/7 365 Everyday Practicality. So check out that, learn more about that at digitalpratik.com/book. So let's start with the first one, staying up to date with current trends. Now मैंने यहाँ पर क्या किया है, ब्लैक कलर में 5 तरीके बताए हैं, and then I've also written the bonus over here. But at the same point in time, I'm also writing something in the blue color. Now वो blue color क्या है? वो ये है कि इसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो. That is something which I have written over here. So the first one as I have written is staying up to date with current trends, और उसमें मैंने लिखा है voice plus video. मतलब क्या हुआ कि आज 2023 में if you start a podcast then it is still not that much late. People think that you are too late. People think that बहुत सारे podcasters आ गए हैं, but ऐसा कुछ नहीं है. In fact, अगर आपको मालूम नहीं है तो Spotify recently introduced video podcasts as well. मतलब अगर आप एक पूरा वीडियो पॉडकास्ट Spotify में अपलोड करोगे, या अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो जैसे कि एंकर, अगर आप एंकर पे पूरा एक वीडियो अपलोड करोगे, देन स्टिल योर वीडियो वुड बी विजिबल ऑन Spotify जस्ट लाइक दिस वन. वी जस्ट अपलोड couple of, जैसे कि ये पूरा एक एपिसोड है, this entirely this episode can go as a video podcast, all right, so that people can straight away watch this video on Spotify. So yes, stay up to date with current trends and be an early adopter over there. यानी voice plus video. It's not just about podcast, you doing voice. लेकिन बहुत सारे सवाल पूछेंगे कि यार मेरे को वीडियो पॉडकास्ट करना जरूरी है क्या to stay up to date with the current trend? No, not at all necessary. You can just record on your phone just like this and it is perfectly all right. हाँ, बस ऐसे कैमरा चालू कर दो और अपने आप को रिकॉर्ड करो, कैमरा के सामने देखने की जरूरत नहीं है, if you want to. So ऐसे बहुत सारी चीजें आती रहेगी अगर आप वॉइस एंड वीडियोस के अंदर एक्टिव रहना चाहते हो तो. So next one is capitalize on growth opportunities, and इसमें customer needs का जो रिसर्च होता है, right? What does your customer need actually in the moment? वो रिसर्च बहुत ही जरूरी है. Now how do you do that? Let's suppose आप एक डस्टर का प्रोडक्ट, डस्टर जैसे एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, राइट? So will your duster, will that particular material, या will that particular weight of the duster and all of that would be liked by people or will be bought by people or not? मतलब कि customer needs research जो होता है आपका, वो fulfill करने के लिए आप क्या करोगे? एक नॉर्मल सा आप लैंडिंग पेज बना सकते हो. लैंडिंग पेज पे आप ये प्रोडक्ट का खाली एक फोटो लगा दो, डमी प्रोडक्ट का, एंड वहां पर नेम एंड ईमेल डाल दो और अच्छा एक लैंडिंग पेज बना के वहां पर एक क्वेश्चन या हेडलाइन अच्छे से कॉपीराइटिंग करवा लो, दैट वुड यू बी इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट? या तो फिर एक ई बुक बना दो ऑफ समथिंग अराउंड योर प्रोडक्ट. डस्टर तो एक एग्जाम्पल ले लिया, कुछ भी हो सकता है. एग्जाम्पल अगर मैं रियल टाइम में दूं, रिसेंटली एज आई मेंशन इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द वीडियो, आई एम कमिंग अप विद माय ओन बुक, जैसे कि ये है. All right, so I'm coming up with my, by the way, this is a 10% book which I'm going to talk over here. This is just a 10% of the full book which is going to be published on Amazon and all the, you know, available platforms where people buy book soon. Probably अगर आप ये वीडियो 2023 में देख रहे हो तो obviously book शायद publish भी हो चुकी होगी. You can get that book somewhere. यहाँ पर एक लिंक होगी, या तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर देना और बुक ले लेना और मेरे को बताना भी सही कि कैसी लगी आपको बुक. बट 10% ऑफ द बुक आप कुछ भी एक लीड मैग्नेट बना सकते हो अपने प्रोडक्ट के अराउंड, एंड देन यू कैन प्रमोट दैट टू जनरेट लीड्स सो दैट यू कैन सी वेदर people are interested in your product or not. Now this is just one out of many ways which you can use. You can ask, if you have an audience, if your brand and business already has an audience, you can also go on social media platforms and you can ask LinkedIn questions. You can ask you can take polls, you can have Twitter polls, you can also ask people on Instagram. You can creatively use an Instagram trending music and create a reel, and then you can ask a question so that you can get more engagement on your post. LinkedIn पे भी आप ऐसा कर सकते हो, कहीं पे भी ऐसा कर सकते हो. So basically the point over here is capitalizing on growth opportunities. इससे हो रहा क्या है, आप leads generate कर रहे हो, आप अपने business में भी एक database बना रहे हो before even launching your product.
and then you can always nurture your leads via email sequences, via marketing automation and all those things. Now this is just one out of many things which you can do, but the point over here is capitalizing on growth opportunities. Time for the third one, which is contextual content marketing. उसमें मैंने ब्लू कलर में लिखा हुआ है shareable plus consumable. इसका मतलब क्या हुआ? Now a lot of times people ask me that Prateek, you have been doing so many things in the content space, but your engagement is decreasing on Instagram, on here and there, blah blah blah. कहीं कहीं पे यहाँ वायरल चले जाता हो, लेकिन बहुत टाइम आपका एंगेजमेंट कम होता है. You get less number of views and all. You put in so much efforts in post production quality, but still your views are not reaching. मेरा मुद्दा यही होता है that brands अलग अलग होती है. Your brand might be somebody who is just doing scripted content. जैसे कि ये एक वीडियो जो है, दिस इज एक्चुअली कि एक प्लान बनाया है कि हाँ ये 5 चीजें बोलनी है, ये 5 इस चीजों के हिसाब से अब मैं आपसे बातें कर रहा हूं. इसमें भी मेरे पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर वाला स्क्रिप्ट नहीं है. मैं अपने दिल से बोल रहा हूं, मेरे अपने दिमाग से, टैलेंट से बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से बोल रहा हूं. लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स क्या होते हैं, मैं वो नहीं कर रहा हूं कि वो गलत कर रहे, वो उनका तरीका है. बहुत सारी ब्रांड्स क्या करते हैं, दे जस्ट वांट टू बी इन्फ्लुएंसर. सो व्हाट दे विल डू इज they'll pick up topics which are trending. They'll try to use trending music. They won't be doing content just for the sake of distributing it for people and then building a brand out of it for 10, 20, 30 years. But what they might want to do is, obviously they want in the moment engagement so that they will create shareable plus consumable content और उनका content viral चला जाएगा. आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा. लेट मी नो इन द कमेंट्स. आप बहुत बार बहुत ही मेहनत करोगे अपने कंटेंट पोस्ट प्रोडक्शन में, आपके कंटेंट बनाने में, लेकिन आप वायरल नहीं जाओगे और कोई ऐसा ऐसा डांस करेगा या तो ऐसा ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करके क्रिएटिव रील भी बनाएगा, फिर भी वो वायरल चले जाएंगे, आप नहीं जा पाएंगे. अब ये गलत है? नहीं, ये उनका तरीका है. वो स्मार्ट है, टैलेंटेड है. एवरीबडी इज डूइंग हार्ड वर्क. अभी वो डांस में वायरल हो गए, लेकिन वो डांस करके फिर लोगों का ताना सुनना या लोगों की तारीफ सुननी, वो दोनों के लिए वो तैयार होते हैं, वो दोनों के लिए सक्षम होते हैं. सो I personally feel we all humans are creative. We all humans have different capabilities. So ये एक तरीका होता है shareable plus consumable content बनाने का, and that's where it is contextual content marketing. Now मैं जब content बनाता हूँ for my brand, since day one I have been creating content for years now. I have never thought of going viral. I've always thought of कि okay fine, एक piece of content बनाने से अगर 10 लोगों का भी भला हो रहा है ना, I'm okay. It's okay. So that's my personal choice. Because of which maybe अगर मैं एक बार वायरल कहीं पे जा रहा हूं, then बहुत सारे फॉलोअर्स आ जाएंगे. But because maybe for the next 3 months I'll just create content and document my life because I'm a hardcore follower of Gary Vee. So because he's kind of my virtual mentor and I have been doing and documenting my content, wherever I go I document, I de-rock. Because of which मेरा कंटेंट थोड़ा सा अलग होता है. अगर आप मेरे इंस्टाग्राम में भी देखोगे, यहाँ पर मैं हम दिखा देंगे थोड़ा सा, इंस्टाग्राम में देखोगे और कंटेंट इज नॉट स्क्रिप्टेड. इट इज जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, ये वो फलाना का भी पोस्ट प्रोड्यूस व्हाटएवर इज देयर इन माय लाइफ. हम ऐसा कंटेंट बहुत कम बनाते हैं, विच इज समथिंग विच आई एम नाउ चैलेंजिंग माई सेल्फ कि ये वाला कंटेंट भी मुझे बनाना है वापस, एंड आई वांट टू प्रोड्यूस इन सच अ वे दैट इट इज शेयरेबल एंड कंज्यूमेबल. सो कॉन्टेक्चुअल कंटेंट मार्केटिंग आप बनाते रहो. कॉन्टेक्चुअल यानी अगर आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हो तो ट्राई दैट वो लिंक्डइन का एक ऑडियंस होगा. आप हमेशा सोचो कि जब आप लेट्स सपोज आप एक लड़की को मिलने जाते हो, राइट, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू डेट हर, इफ यू आर ट्राइंग टू मेक, लेट्स से आप दोस्ती बनाना चाहते हो, पहले तो आप उनको जानते नहीं हो, लेकिन वो लड़की से अगर बात करनी है, डेट करना है, शादी भी करनी है, प्यार हो गया, ये वो सब कुछ करना है आपको उनके साथ, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्राई करोगे उनसे बात करने का, राइट. ना दो आपको केस स्टडीज बताता हूं, या तो दो केस सिचुएशन देता हूं. एक सिचुएशन यहां पर एक आप ट्रेडिशनल इंडियन फंक्शन में जाते हो, शादी में जाते हो, और दूसरा यहां पर एक नाइट डिस्को थेक में जाते हो, ठीक है, एक क्लब में जाते हो रात को. अब दोनों ही जगह पे आप दोनों के कपड़े भी अलग होंगे, आप दोनों का मूड अलग होगा, आप दोनों का बात करने का तरीका भी अलग होगा, आप दोनों का वाइब अलग होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव तो एक ही है ना कि लड़की से बात करना है. सेम थिंग. सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज, आप बात कैसे कर रहे हो, based on the context, based on the environment, based on the platform probably where you are.
सेम वे कॉन्टेक्चुअल कंटेंट मार्केटिंग, आप एक ही वीडियो को अगर आप लिंक्डइन पे भी डाल रहे हो, इट इज ओके, बट मेक श्योर दैट लिंक्डइन का ऑडियंस अब लिंक्डइन पे वो देख रहा है, दे माइट बी इन अ डिफरेंट मूड, दे माइट बी इन अ डिफरेंट एनवायरमेंट, दे माइट बी इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इन देयर हेड, दे माइट बी प्रोबेबली इन द ऑफिस, माइट बी स्क्रॉलिंग एंड वो एक वीडियो आया, उनके दिमाग में प्रोफेशनलिज्म या थोड़ा सा कैजुअलिज्म होगा वहां पर। लेकिन अगर कोई बंदा अगर इंस्टाग्राम में पोस्ट वो देख रहा है तो वो एक कैजुअल मूडी एक फ्रेश होने या रिलैक्स होने के लिए शायद आया होगा। सो मेक श्योर आप वो कॉन्टेक्चुअल कंटेंट मार्केटिंग का मतलब समझो। एंड देन फोर्थ वन, ट्रैकिंग द राइट केपीआईज, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। केपीआई का मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत टाइम लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने अभी अगले यहां पर कहां पर बात की, या इन द थर्ड वे ओनली आई टॉक्ड अबाउट दैट मेरा कंटेंट मैं वायरलिटी के लिए नहीं बनाता। इवन इफ आई गेट लेस नंबर ऑफ व्यूज आई डोंट केयर बिकॉज आई एम नॉट इनटू ब्रांड डील्स। लेकिन बहुत सारे ब्रांड डील्स में होते हैं। सो यहां पर फॉलोअर्स फॉर ब्रांड डील्स वर्सेस रियल कन्वर्जन्स फॉर बिजनेस मैंने ऐसा लिखा है ब्लू कलर में। मतलब क्या हुआ दैट एज अ ब्रांड, एज अ बिजनेस ओनर राइट नाउ आई एम नॉट अ प्राइमरी बहुत सारे लोग जो इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालेंगे, majority of them are trying to be content creators or are content creators, then they are building business, while मेरा थोड़ा उल्टा है। I am running a digital agency, I am running a business, क्लाइंट को रिजल्ट्स देना मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वहां से मेरा प्राइमरी इनकम ऑफ सोर्स है मेरी कंपनी में, मेरे एम्प्लॉयज को सैलरी हम उनमें से देते हैं, ग्रो उसमें से कर रहे। देन प्रोबेबली माई की नोट स्पीकिंग गिग्स, जहां पर आई गेट पेड फॉर स्पीकिंग, आई गेट पेड फॉर लेट्स से अगर हम कभी 6 महीने में एक बार मार्केटिंग का प्रोग्राम निकालते हैं, ऑनलाइन कोर्स निकालते हैं, वर्कशॉप करते हैं, वहां से होता है। वो थर्ड कैटेगरी होगी। फोर्थ कैटेगरी शायद अगर कोई ब्रांड अप्रोच करती है जहां पर मेरा एक आई ऑल्सो हैव अ वर्चुअल मैनेजर विच इज नॉट फुल टाइम बट दे आर देयर। सो अगर वो लोग बोलते कि हाँ चलो यहां पर ब्रांड डील लेनी है, प्रतीक आपके लिए ये अच्छा है ब्रांड डील, एंड इफ आई फील दैट आई वांट टू डू इट ओनली देन आई वुड से yes, right? And they would come not based on the number of followers or engagement which I might have, they would come based on the overall influence I might have, overall एक कैटेगरी में मैं इतने टाइम से होऊंगा उसके बेसिस पे वो आएंगे, not just because of the number of likes, comments, views या followers। सो यहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझो। फॉर मी, फॉर पीपल लाइक मी, लाइक ट्रैकिंग द राइट केपीआई का मतलब क्या हुआ, वी आर फोकस ऑन रियल कन्वर्जन्स फॉर बिजनेस। मतलब पूरे महीने में क्लाइंट्स को जो रिजल्ट्स मिलना था क्या वो मिला। फिर अगर मेरा पर्सनल ब्रांडिंग का प्योर ब्रांडिंग एड्स कर रहे हैं तो वो एड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। अगर ये हम कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं। सो फॉर अस इट इज नॉट अबाउट लाइक्स कमेंट्स, ये वो हम इतनी जान लगा कि अगर ये कंटेंट डाल रहे हैं अभी 15-20 मिनट का वीडियो, लेकिन मेरा फोकस ये नहीं होगा कि इसको 1 मिलियन व्यूज पे पहुंचाना है। मेरा फोकस ये नहीं होगा कि अगर ऑर्गेनिक नहीं बढ़ रहा है तो चलो गूगल एड्स में प्री रोल एड चला के इसका व्यूज बढ़ाते, नहीं, मेरा गोल वो नहीं होगा। सो यहां पर मेरा गोल क्या होगा, लेट्स से मेरा गोल इसमें से ये होगा कि अगर कोई 10 बिजनेस ओनर्स भी इसको अगले 6 महीने में कहीं ना कहीं देख भी लेंगे और अगर उनको एक बात भी हिट करती है, इफ दे अप्रोच मी दे वुड बी साइनिंग अप एज अ क्लाइंट फॉर माय एजेंसी, वो मेरा ROI पॉजिटिव होगा, वो मेरा ट्रैकिंग द राइट KPI का एक तरीका होगा, वेयर आई वुड ट्राई टू स्टे हेड ऑफ माय कंपटीशन, राइट? सो ये बहुत ही जरूरी है कि आप समझो, हर एक बंदा जो कंटेंट डाल रहा है, बंदा बंदी जो भी है, वो कंटेंट जब डालते हैं ऐसा नहीं होता है कि उनको लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज, फॉलोअर्स और यही होता है KPI दिमाग में, वो नहीं होता है, वो तो बहुत कम होता है। बट जो यंगस्टर्स होते हैं जो शायद कोई बिजनेस नहीं कर रहे होंगे, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो शायद उनके लिए वही हो जाता है। तो प्लीज कम आउट ऑफ दैट, think properly and then legit businesses build karo। And the last one, the fifth one, which is emerging tech opportunities के experiments करते रहो as a brand, as a business, yeah, as anybody। Even if you are just getting started, always have this in head if you are trying to stay ahead of your competition in 2023 and more to come। it's not just 2023, इसको उल्टा कर दो, 2032 में भी ये बात तो रहेगी। Alright, always try to be an experimenter, always try to be an early adopter। और इसीलिए मैंने यहां लिखा है ब्लू में Web3, ऑडियो, एलेक्सा एंड मच मच मोर विच इज गोना कम, राइट? अभी Web3 आया, जैसे NFTs आया। सो जोर परिवार जो मेरा NFT प्रोजेक्ट है, जोर परिवार वी लॉन्च्ड इन August 2021 विच इज इंडियाज फर्स्ट कम्युनिटी ड्रिवन NFT प्रोजेक्ट। अब उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज इट इज
फर्स्ट बेस्ड ऑन द 22 ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो यहां पर है, इसमें ड्राइंग्स जो है, एंड दे वर ट्रेडमार्क्ड इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया। मतलब वो ट्रेडमार्क करने का अलग होता है, उसके बाद एनएफटीज हमने लॉन्च किए, तो वो एक लेजिट बिजनेस होने वाला है अगले 10 20 30 साल तक, लेकिन लोग उसको एनएफटीज ही समझ रहे हैं। उसके डिटेल में मैं बाद में कोई और वीडियो में जाऊंगा, बट the point over here is, as a business, as a brand, I tried to stood out, right? And I did. As a Web 2 person, I went into Web 3 by being non-technical. मेरे को technicalities नहीं आती है, but as a business owner, I tried to understand everything. I now know the importance of smart contracts, everything. Alexa की अगर बात करूँ तो 2017 में मैं Alexa skills development में पढ़ गया था. I now have a friend who is running a fully fledged voice app based company. राइट तो ये सारी चीजें जब कुछ आता है नया, तो ऐसा मत सोचो कि ये मेरे लिए नहीं है यार, ये तो क्रिप्टो है, बिटकॉइन का भाव घट जाएगा, इथेरियम का भाव घट जाएगा। अंडरस्टैंड थिंग्स एज टेक्नोलॉजी एज वेल। एनएफटीज एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप देखना शुरू करो, नॉट जस्ट फॉर द फ्लिपिंग से कि हाँ ये कार्टून अच्छा हुआ तो ये इसको बढ़ा के इसको पैसा डाल दो, लेकिन अभी तो क्रिप्टो विंटर आ गया, अभी बेयर मार्केट है तो कुछ नहीं होगा। ये वो बेयर मार्केट में भी टेक्नोलॉजी तो समझो कि आने वाले कल में क्या हो सकता है। ट्राई टू सी द पॉजिटिव ब्राइटर साइड ऑफ एवरी न्यू थिंग विच इज कमिंग, एंड दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इमर्जिंग टेक अपॉर्चुनिटीज में एक्सपेरिमेंट करो। अभी एक्सपेरिमेंट करो का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ चलो एनएफटीज आया तो आपको भी एनएफटीज लॉन्च करने, नहीं ऐसा नहीं है। समझो उसको, और फिर लेट्स सपोज इफ यू आर एन एम्प्लॉय एट अ कंपनी, यू शुड ऑब्वियसली आप बातें करो, अपने बॉस को बोलो कि ऐसा कुछ है, शुड वी ट्राई, आई वुड जस्ट डू रिसर्च। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से वो कुछ नया सीख रहे हो, तो आप बाय डिफॉल्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपको कुछ लॉन्च करना है, राइट? सो दिस इज व्हाट आई मेंट ओवर हियर, एंड टाइम फॉर द बोनस वन विच इज सीसी स्ट्रैटेजी। सीसी स्ट्रैटेजी का मतलब आप लोग जानते ही हो इसको, लेकिन मैंने ऐसे ही लिखा है यहां पर सीसी स्ट्रैटेजी। सीसी मीन्स कंज्यूमर सेंट्रिक। लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर। अभी आप लोग मन में तो गाली दोगे यार प्रतीक, क्या यार कंज्यूमर सेंट्रिक ही बोल देते यार, कंज्यूमर सेंट्रिक। अब मैं पहले से ही बता देता तो आप एंड तक तो नहीं देखते ना, अभी तक देख रहे हो। अगर बाय एनी चांस इफ यू आर वाचिंग इट टिल दिस पॉइंट इन टाइम, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, एंड आई विल टॉक अबाउट दिस, बट बिफोर दैट, इफ यू फाउंड दिस even an inch of value in this video, all right, if you found any inch of value in this video, then please like this video, subscribe to this channel for more videos like this to come up with. Consistent रहेंगे, try भी करेंगे, and then please share this video, turn on the bell notification। वो जो भी CTAs होते हैं YouTube के पट यहाँ पर डाल देंगे। मैं पोस्ट प्रोडक्शन टीम, प्लीज डिजिटल प्रतीक गैंग यहाँ पट ऐसे कुछ डाल देना है, मतलब लाइक कमेंट शेयर वाला यहाँ पर जो भी होता है वो। एनीवे, सो कमिंग ओवर हियर, द बोनस स्ट्रैटेजी, सीसी स्ट्रैटेजी, कंज्यूमर सेंट्रिक स्ट्रैटेजी। मतलब क्या, इसको अलग तरीके से अगर एक और वर्ड भी है जो आजकल बहुत ही लोग फोकस कर रहे हैं, जो सदियों से है लेकिन क्या बोलते हैं, मतलब अभी आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, कम्युनिटी बिल्डिंग। और ये बहुत सही बात है। कम्युनिटी बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ, अभी कम्युनिटी बिल्डिंग, ये बोनस स्ट्रैटेजी थोड़ा मैं डिटेल में जाने वाला हूं यहां पर। सो बिफोर दैट आई जस्ट इरेज दिस। बाय द वे, बिफोर आई इरेज, आई वुड लाइक फॉर यू, मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूं यहां पर यूट्यूब वीडियोज में। मैं ऐसे करूंगा ना, तब आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर पे शेयर करो, एंड ट्विटर पे शेयर करो ना, तब यूज करना हैशटैग डिजिटल प्रतीक शो, डिजिटल प्रतीक गैंग। प्लीज यहां पर बड़ा है, यहां पर एक हैशटैग डाल देना, हैशटैग डिजिटल प्रतीक शो, एंड टैग मी @digital प्रतीक। अभी मैं ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1, okay, I assume that you have taken a screenshot. If you have not, go back, take a screenshot, share it on Twitter, tag @digital pratik, and use the hashtag digital pratik show। होगा क्या, मैं उसको रीशेयर करूंगा, रीट्वीट करूंगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन इन दैट, अगर आपको कोई सवाल भी है इसके अराउंड, तो वो स्क्रीनशॉट के साथ आपके कोट रीट्वीट डालना और वहां पर एक क्वेश्चन भी डाल देना, सो दैट आई कैन आंसर यू। अगर आपको लिंक्डइन पे करना है, डू दैट सेम थिंग, @digital pratik, वहां पर सर्च करो, वहां पर भी हैशटैग डिजिटल प्रतीक शो यूज करो। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आई वुड लव फॉर यू टू कम्युनिकेट। नाउ मतलब क्या हुआ, कम्युनिटी बिल्डिंग ट्राई कर रहा हूं मैं यहां पर इन रियल टाइम। मैं और वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता हूं आपको, बिकॉज मुझे मालूम नहीं है आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा, मुझे मालूम नहीं है आपके दिमाग में क्या सवाल होगा, मुझे मालूम नहीं है कि आपकी सिचुएशन क्या है और आप ये कंटेंट को कैसे कंज्यूम कर रहे हो, कौन से एंगल से देख रहे हो।
So I really want to know more about you. I really want to answer more questions for you. I really want to actually build a community together forever towards 2032 and more. So यहाँ कम्युनिटी बिल्डिंग को है ना, मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, और उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, बिकॉज आई वांट टू एक्चुअली गिव यू एन एग्जांपल जो मैं काफी टाइम से लोगों को समझाने की ट्राई कर रहा हूं, और बहुत सारे कैप्शंस में मैंने उसको लिखा भी है वीडियोस में अलग अलग एंगल में. सो यहां पर मैंने इरेज कर दिया, और अब एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर कि अज्यूम करो कि अगले 10 साल में आप 100 करोड़ कमाना चाहते हो. ऑलराइट, अगले 10 साल में अगर आप 100 करोड़ कमाना चाहते हो, तो अगर एक साल का आप गिनती करोगे, एक साल में आप 10 करोड़ कमाओगे. 10 करोड़ इज अप्रोक्सीमेटली $1 मिलियन, जो कि हर एक यंगस्टर का आजकल सपना होता है. $1 मिलियन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़. मतलब आप कैलकुलेट करोगे गूगल पे जाके तो $1 का भाव भी 80 रुपए के करीबन चल रहा है, 82 रुपये. तो $1 मिलियन यहां पर आप 8 करोड़ गिनते हो, विच इज मैंने कैलकुलेशन लगाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ कर दिया है. तो 10 करोड़ 12 महीने में, तो एक महीने में आप 1 करोड़ कमा रहे हो. ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते. अभी 1 करोड़ को बिकॉज यहां पर हमने एडजस्ट किया था और छोटा कर देते कि आप हर महीने चलो 50 लाख कमा रहे हो. ऑलराइट, अगर ये गिनती से जा रहे हैं एवरेज. अब ये जब मैं 100 करोड़ 10 साल में बोल रहा हूं, तो आप हर साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वैसे करके हर साल आप 10 करोड़ कमा रहे हो, वैसा मैं बात नहीं कर रहा हूं. मैं कलेक्टिवली 10 साल का 100 करोड़ का रेवेन्यू की बात कर रहा हूं. मतलब अगर आप लेट्स सपोज पहले 6 साल शायद आप 10 करोड़ नहीं कमा रहे होंगे, लेकिन वो 6 साल का फाउंडेशनल वर्क ऐसा होगा कि शायद आप 7th, 8th, 9th एंड 10th ईयर में इतना ज्यादा कमाओगे, 10 करोड़ से भी ज्यादा, कि आपका जो कुल मिला के 10 साल का रेवेन्यू है वो 100 करोड़ यहां पर हो सकता है. तो वो हिसाब से मैं बात कर रहा हूं. हर साल 10 करोड़ नहीं, 10 साल में 100 करोड़ की बात चल रही है. तो अभी उसके हिसाब से यहां पर 50 लाख हर महीने. अब ये रेवेन्यू की बात की मैंने, ये आपका प्रॉफिट नहीं है. अब मैं यहां जब रेवेन्यू की बात कर रहा हूं कि आपका 100 करोड़ का रेवेन्यू है, मतलब 50 लाख का हर महीने ऑन एन एवरेज आपका रेवेन्यू हुआ, ऐसा हम कैलकुलेशन गिन रहे हैं. वहां पर अज्यूम दैट यू हैव जस्ट मेड 10% प्रॉफिट, मतलब लीस्ट अमाउंट का प्रॉफिट. 10% तो प्रॉफिट आपने किया होगा. अब 10% प्रॉफिट अगर हर महीने ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो 5 लाख का आपका हर महीने का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट. इफ यू इन इंडिया बेस्ड ऑन इंडियन स्टैंडर्ड्स, और एकदम वो हर रोज प्राइवेट जेट में फ्लाई करना वो टाइप का नहीं, मतलब एक नॉर्मल आप हर रोज 5 स्टार में खाना खाने जा रहे हो, आप शॉपिंग कर रहे हो हर रोज, आप गाड़ी में घूम रहे हो हर रोज, ये वाली आप अपने घर में रह रहे हो, ये वाली जो लाइफस्टाइल है ना वो, और ये भी बहुत ही रिच लाइफस्टाइल हो गई. मतलब प्राइवेट जेट में नहीं जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि रिच लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रहा हूं, लग्जरियस लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रहा हूं. यस, डेफिनेटली लग्जरियस लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूं. उसमें भी अगर आप हर महीने अगर आपको 5 लाख रुपए आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि 5 लाख रुपए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं अभी यहां पर, राइट? अब फाइनेंशियल फ्रीडम का अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू विल डेफिनेटली डू इन 10 इयर्स. आप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करोगे, आप कोई जमीन खरीदोगे, आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे, आप कितने टैलेंटेड हो एज एन इन्वेस्टर वो आप पे डिपेंड करेगा. ये एक हाइपोथेटिकल यहाँ पर सिचुएशन ले रहा हूं, और ये भी क्यों ले रहा हूं इन सीसी स्ट्रैटेजी, ये भी मैं आपको समझाऊंगा. एंड हाउ टू स्टे अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिशन इन 2023, ये भी मैं समझाने वाला हूं. सो यहां पर क्या होने वाला है, आपको ये कैलकुलेशन तो पता चल गया, राइट? अब ये कैलकुलेशन जो 100 करोड़ का है, वो 100 करोड़ करने के लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, मतलब कि $1 मिलियन कमाने के लिए लोगों को एक ही साल में $1 मिलियन कमाना शुरू कर देना है. बट जो मैंने तरीका बताया उसके हिसाब से भी तो आप ऑन एन एवरेज 10 साल तक हर साल का $1 मिलियन कमाए, ऐसा ही गिन रहे हैं. सो अगर वो पद्धति से अगर हम आगे जाते हैं, तो व्हाट यू रिक्वायर इज to stay ahead in the competition, you just need to build a community in 10 years for anything you are doing. यार for anything. अगर let's suppose आप एक ऐसा बॉटल भी बेच रहे हो एज एन ई कॉमर्स प्रोडक्ट, अगर आप एज अ टिफिन बॉक्स बेच रहे हो, अगर आप लेट्स सपोज क्या बोलते हैं मेरे आजू बाजू, लेट्स सपोज आप ऐसा मग बेच रहे हो, लेट्स सपोज आप एक फिटनेस का इक्विपमेंट ऐसा बेच रहे हो, लेट्स सपोज अगर आप एक ऐसा ग्लास मटेरियल बेच रहे हो, लेट्स सपोज आप हार्ड डिस्क
बेच रहे हो, लेट्स से एनीथिंग, अगर आप कैमरा बेच रहे हो, व्हाइट बोर्ड बेच रहे हो, कुछ भी, अगर आपके धंधे में 10 ईयर्स तक आपने 10,000 लोगों की सेना बना दी, आर्मी बना दी, कम्युनिटी बना दी ना, जिसका लाइफ टाइम वैल्यू LTV और CLTV यानी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए होता है पर पर्सन, तो 1 लाख इंटू 10,000, अब गिनती कर लो, अप्रोक्सीमेटली वो 100 करोड़ ही होता है। अभी CLTV का मतलब क्या होता है? CLTV मतलब अगर लेट्स सपोज मैंने एप्पल के पास से ये फोन लिया, अभी ये एक ही फोन नहीं है, ये एक है, फिर दूसरा यहां पर पड़ा है। वैसे सिंस 2017 जब से मैं फाइनेंशियली थोड़ा अच्छा हुआ, अपने पैरों पे खड़ा हुआ, तब से लेके आज तक, शायद 2017 से 2023 है ना, पिछले 6-7 सालों में मैंने iPhone 7 प्लस से सारे आईफोन्स लिए हुए। ऑलराइट, मैंने सिर्फ ये 13 और 14 में इन्वेस्ट नहीं किया बिकॉज उसमें खाली कैमरा का डिफरेंस है, मुझे ये नहीं चाहिए था। बट मेरे पास आज ऑलमोस्ट 5 आईफोन है, ठीक है। एप्पल के प्रोडक्ट्स में दूसरी बात करूं तो ऐसे एयरपोर्ट्स 2 है, ये वाला माउस है, एंड मेरे पास 2 मैकबुक भी है। अभी आप टोटल गिनती करोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 10 लाख रुपए का एप्पल प्रोडक्ट्स पिछले 7 साल में लिया। ऑलराइट, 7 साल में 10 लाख का प्रोडक्ट लिया है और भी लेता रहूंगा। सो एप्पल एज अ ब्रांड के लिए ये कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी हुई? कम से कम 10 से 20 लाख रुपए। ऑलराइट, क्योंकि मैं और भी लेने वाला हूं। सो ये एक ब्रांड को बिजनेस करते करते आइडिया आता जाता है कि वो ब्रांड जब 30 साल का बिजनेस धंधा सोच रही है तो उनके कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू कितना होगा, उनके प्रोडक्ट के हिसाब से, उनके प्रोडक्ट की वेरिएशंस के हिसाब से, वो आगे इनोवेट करेगी उसके हिसाब से। तो उसके हिसाब से मैं ऑन एन एवरेज यहां पर, अब देख रहे हो आप, राइट, मैंने 7 साल में एक ब्रांड को 10 लाख रुपए ऑलरेडी दिए और भी देने वाला हूं। अब आपको महंगा नहीं लग रहा है? आपने भी ऐसा किया होगा। बाय द वे, कमेंट बिलो, कमेंट करो बिलो, या तो फिर वंस अगेन टाइम फॉर स्क्रीनशॉट, 3, 2, 1। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, प्लीज वापस ट्विटर पे शेयर करो, @digital प्रतीक टैग करो, #digital प्रतीक शो यूज करो, और मेरे को बताओ, वो ट्वीट में बताओ, मेरे को टाइप करो कि आपने कोई भी एक ब्रांड को कम से कम अपनी जिंदगी में 1 लाख रुपए अभी तक दिए है क्या? अगर दिए हैं तो कितने सालों में दिए? प्लीज लेट मी नो, प्लीज, दिस इज गोना बी अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, प्लीज लेट मी नो। ऑलराइट, और ये खाली मेरे लिए नहीं है, ये लोग जो देखेंगे उनके लिए भी है, लोग आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, आप भी अपनी कम्युनिटी बनाओगे वहां पर। सो प्लीज लेट मी नो। सो वो होता है CLTV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो यदि आप 10 साल में 10,000 लोगों की ऐसी कम्युनिटी बनाते हो जहां पर आप इतना वैल्यू प्रोवाइड करो, इतना वैल्यू प्रोवाइड करो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपनी वैल्यू के हिसाब से, अपनी ब्रांड के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से, कुछ भी, व्हाटएवर यू डू, this would happen in 10 years. I'm telling you, I can bet you. Now, when I'm saying I can tell you, I can bet you, that is purely and purely based upon you as an individual, as a business person. आप वो 10 साल कैसे करोगे उस पर निर्भर पड़ेगा। आप वो 10 साल तक क्या रियली लेजिट एक कम्युनिटी बना रहे हो जहां पर आपका मेन फोकस क्या है? मतलब ये एक वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो बनाने में मेरा मेन फोकस ये नहीं है कि मेरे को क्लाइंट मिल जाएगा। मेरा मेन फोकस ये है कि एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूं वो डिटेल में कितना समझाऊं आपको, क्या कि आपको वैल्यू मिले इन द मोमेंट। बाद की बात बाद में है। सो इट इज गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन, जो गैरी वी बोलते हैं, मेरे वर्चुअल मेंटर, एंड गीता में भी लिखा है, कर्म किए जा फल की चिंता छोड़। राइट, इट्स अबाउट गिविंग बट विद फुल हार्ट, विदाउट एक्सपेक्टेशन इन द मोमेंट। जो होना है कर्म इज कर्मा, जो करो ना आप, कर्मा करते रहो। सो अगर वही चीज आप अपने धंधे में यूज करोगे, बिजनेस में यूज करोगे, डेफिनेटली आई एम श्योर दिस वुड हैपन। और इसको बोलते हैं CC स्ट्रैटेजी। अब ये आपको हेल्प कैसे कर रही है? ये हेल्प ऐसे कर रही है कि आप साइलेंटली क्या कर रहे हो, विदाउट लुकिंग एट द सोशल मीडिया मेट्रिक्स, जैसे कि लाइक्स कितने आ रहे हैं, फॉलोअर्स कितने आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स कितने आ रहे हैं, व्यूज कितने बढ़ रहे हैं, ये सोचे बिना, ये लोड लिए बिना, ये मेंटल स्ट्रेस लिए बिना कि प्लेटफॉर्म चलने वाला है कि नहीं, प्लेटफॉर्म बैन हो गया कि नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे कि टिकटॉक था, टिकटॉक जब 2019 में था, 2020 में बैन हो गया, आई अमास्ड 1.3 मिलियन फॉलोअर्स। हम यहां पर दिखा देंगे, इंग्लिश का अकाउंट था मेरा, 1.3 मिलियन फॉलोअर्स विद अ वेरीफाइड अकाउंट, एंड मेरा एक गुजराती अकाउंट भी था जो 150,000 फॉलोअर्स के करीबन पहुंच गया था, लेकिन वो बैन हो गया। क्या मेरी ब्रांड पे इंपैक्ट पड़ा? नहीं।
नहीं. This is what I'm telling you. When you are thinking of 10 years, 20 years, 30 years with a lifetime value, by providing value, by building legit community, at that point in time, you won't think about that. And that's where you become mentally free. आपको stress नहीं होता है social media algorithm का. And what you are focusing on is on minimum this particular thing. With this particular thing. ये हाइपोथेटिकल अगेन नंबर्स है, सब्जेक्टिव टू इंडिविजुअल है. आपका गोल शायद $1 मिलियन नहीं होगा, आपको शायद गोल होगा कि मेरे को भैया साल में 12 लाख कमाने हैं. शायद आपका गोल ये भी होगा कि मेरे को भाई 10 साल में है ना 1000 करोड़ कमाना है. एनीथिंग, बट ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं. एंड इन दिस वे while others, while your competition, while your competitors might be worrying about the number of likes, social media metrics, all these things, आप शायद इस पे फोकस कर रहे हो and you are by default staying ahead. Because at the end of the day, why are we doing all these things for the long term? We want to make money, right? And making money is a skill. Making money is a talent. आप कहीं पे आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो. मेकिंग मनी एक आवड़त है. गुजराती में हम बोलते हैं आवड़त छे भाई, आवड़त. So this is like I can go on and on and on and on and on this particular topic because I'm really focusing on building depth of influence versus just width of influence. जहां पर depth of influence का मतलब ये हुआ, विड्थ ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब नंबर ऑफ फॉलोअर्स जो सोशल मीडिया मेट्रिक्स और ये सब दिख रहा है वो विड्थ हुआ. अगर आप साथ में अगर आप 10 साल तक ऐसा ही करोगे तो आपका दोनों ही इक्विवेलेंट फेज में बढ़ेगा. लेकिन आपको ये नहीं कंपेयर करना है कि उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और आपके 1 मिलियन ही है 10 साल के बाद भी. आप अपने गोल्स को अलाइन करो, आप अपने गोल्स के हिसाब से चलो, एंड दैट्स वेयर यू ट्रूली would be staying ahead of your competition in 2023. Why? Because you will never have a competition. You'll always focus on creating. You'll always focus on creating and delivering value to your community. That's it for this particular video, guys. Let me know in the comments आपको ये क्या अच्छा लगा इसमें से. I'll start calling this as a जोरदार takeaways of a particular piece of content. मैं वीडियो भी नहीं बोलूंगा, ये शायद आप ऑडियो में कंज्यूम कर रहे होंगे, मेरे को मालूम ही नहीं है. तो आपका जोरदार टेक अवे क्या है? प्लीज लेट मी नो. ट्वीट दिस @digital pratik, हैशटैग यूज करो digital pratik show, and I will definitely read all your tweets which is having hashtag digital pratik show. That's it for this particular one. अगर अच्छा लगा हो तो please like this, subscribe to my channel for more videos like this, turn on the bell notification. And I will see you in the next video. Till then, take care, bye, and as always, be jordar and live a practical life.